السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست پہ میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی دانشور کا قول ہے، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ اس طرح گاؤ گے تو نہیں بھی جانا ہوگا تو چلا جائے گا کوئی۔ گل کو اور پاسے نہ لے جایا کرو، گل کو گل سے پکڑ کے تو کیا کرے، آئے ہائے ہائے کیا گایا ہے یار۔ ناظرین، اصل میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی ایک لیجنڈ گلوکارہ جناب محترمہ فریدہ خانم صاحبہ نے ابھی گایا ہے پچھلے دنوں یہی گانا دوبارہ۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے بھی اور انہوں نے بھی 80 سال کی عمر میں گانا گایا ہے یہ۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی تم مجھے حبیب ولی محمد سمجھ رہے؟ ہائے ہائے ہائے، واقعی یہ بہت بہت بڑے ہمارے گلوکار ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ تو یہ جو فریدہ خانم صاحبہ نے آج گایا ہے، یہ میں سوچ رہا تھا ان کی ایج دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، آمین، کہ اگر یہی بات جو ہے یہ ایک دوسرے کو ہم جوانی میں بھی کہتے رہیں کہ آج جانے کی ضد نہ کرو، تو کتنی محبت پھیلے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم ہی چڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ میرے میں اس وقت آ رہا تھا جب میں اپنے گھر سے نکلا تو سکوٹر کی کک مارنے سے پہلے میں نے نادیوں کی طرف سے ایک جملہ سنا، جو ساتھ والی ہماری جو بہن ہے وہ اپنے خامد کو کہہ رہی تھی، کاری بیٹھا رہی نہ چل جا بھی ان کامتے منو شکل لے آگتے میرے سامنے بیٹھا رہی آکر۔ ہمسایوں پہ خوب ڈالا ہے۔ تو ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے ساری زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آج کل بڑا ایک لطیفہ مشہور ہوا ہے نا کہ اگر خامد جو گفتگو شادی سے پہلے بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہی گفتگو اگر شادی کے بعد بھی کرتا رہے کہ زندگی بہت پیاری گزرے، اور جو گفتگو بیوی شادی کے بعد خامد کے ساتھ کرتی ہے، جس طرح کی گفتگو اور جس انداز میں گفتگو کرتی ہے خامد کے ساتھ شادی کے بعد، اس طرح پہلے کرے تو شادی ہو ہی نا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہی بیوی جو شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو یہ پوچھنے پر کہ چاند کہاں ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ چاند تو میرے سامنے ہے، شادی ہو جائے تو پھر پوچھے کر کے چاند کہاں ہے تو بیوی آگے سے کہہ رہی ہوتی ہے انیاں نظر نہیں ہوگا سامنے سامان تے خربوزہ ٹنگے ہے، میرے کو پوچھنے ہے چاند کہاں ہے، ایڈت چاند دا ماما۔ جو کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد شروع میں شوہر بیوی سے کہتا ہے چھت پر آؤ ایک لمحے کو، چاند کو آئینہ دکھانا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی بیوی کو وہی شوہر کہہ رہا ہوتا ہے چھت سے جاؤ ایک لمحے کو، ورنہ چاند نے برا منانا ہے۔ تو میری بات کہنے کی یہ ہے کہ محبت پیار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس کا بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ خاص بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں تو بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچے بیچارے چھوٹی ایج میں بزرگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی، خوف کے ساتھ جو ہے وہ بزرگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نہیں ابھی تک لڑکا لگتا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی ٹینشن لی نہیں، خوف مجھے ہوتا نہیں اللہ کے سوا کسی کا بھی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا کیا لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے، لڑائی کا نام دیا ہوا ہے، سارا دن مار کھانی ڈانٹ کھانی، لڑتے بہت، اور لڑائی دو طرفہ ہوتی ہے۔ اور یار ایک طرفہ بھی لڑائی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ٹنڈی لڑائی۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ ہوں ریسکیو 1122 نہیں جو ہر جگہ پہنچوں، پرویز خٹک۔
बहुत ठीक फरमाया है परवेज खटक साहब ने, वो वाकई केपीके के वजीर आला है। अब उनको आप कहें कि हर जगह ही पहुंचे, हद हो गई है, वो रेस्क्यू 1122 ना उनको समझ ले, वो गुफ्तगू या तकरीर करें तो उनके मुंह से नहीं निकलता, उनके मुंह से तो निकलता है। देखा, गलत बात कर रहा है ये बंदा, वो वजीर आला है बेचारे, उनके साथ आप लोग याती करते। वो तो बेचारे अस्पताल किसी की खबर लेने चले जाएं तो डॉक्टर आके मरीज से नाराज होना शुरू हो जाते हैं कि यार तू लम्मा पे है, जरा खबर लेना आया उन्होंने लम्मा पा लेटे जी आप लेटे, अब पता नहीं नर्स गलत ग्लूकोज ला गई है, आपको लगना था लेटे आप जनाब। भाई उनको रेस्क्यू 1122 ही समझ लिया हुआ है। हाँ वो रेस्क्यू कर सकते हैं, कोई अगर चिड़िया बेचारी गिर जाए बेहोश होके, उसको उठाने के लिए वो खुद आ सकते हैं, या कोई 2 बंदे साथ ले जाए। हाँ बंदे 2 साथ ले जाए, आले दुआले फाड़ के तो ले आए चिड़िया को, अच्छा। या कोई चूजा चील उठा के ले जाए तो उधर उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो चील के पीछे उड़ भी लेंगे। ये थोड़ा रिस्की है। नहीं, ऊपर जाके चील के साथ मजाकरात कर लें उड़ते उड़ते आधा पौना घंटा, फिर जब वो मान जाए तो उसके मुंह से चूचा खींच के वापस ले आए। या कोई एकदम फोन आ जाए जी जल्दी पहुंचे जनाब, एक बंदे के कान पे जू रिंग रही है, वहां पे चले जाएं, जाके जू उतार दें। और प्रेस साहब ये ख्याल कीजिएगा कि किसी पिलर शिलर को या किसी खिड़की को पकड़ के तो जू उतारिएगा, जू उल्टा इनका बाजू पकड़ के अपनी तरफ लाना, खींच ले खटकू जी आ जाए कान के ऊपर चक्कर लगाएं। अच्छा जी, अब बयान पढ़ने लगी हूँ, आपने बूझना है कि किसका है जी। ठीक है। NA 122 के इलेक्शन से हुकूमत बदल जाएगी। वही भाई साहब, वही कौन वाला? शेख रशीद। गुड। हर जुबान पे एक ही नाम है, शेख रशीद, शेख रशीद। शेख साहब ऐसे अगर आप लजूमी की दुकान खोल लेना, हाय हाय हाय, और बाहर वड्डा बोर्ड लगा दे, इल्मे नजूम व इल्मे तुक्काजात, जैसे जैसे आप तुक्का लगाते हैं ना, वाह 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 वाह, वैसे अगर ये नजूमी की दुकान खोल भी लेना शेख साहब, कोई आके अपनी शादी की भी बात कहेगा ना तो इनके तोते ने फाल जो निकालनी है उस पे लिखा यही होगा, दिसंबर की आखिर पे तुम्हारी शादी हो जाएगी और हुकूमत चली जाएगी। कारोबार का भी कोई आगे पूछेगा तो तोते ने यही निकालना है, कारोबार तुम्हारा चल जाएगा मगर हुकूमत खत्म हो जाएगी। किसी ने आगे पूछना मुंडा होगा कुड़ी, जो भी होवे हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब तो शेख साहब अपने घर नौकरों को भी यही कह रहे होते हैं, दे दो लस्सी के हुकूमत जाएगी तो फेर दोगे। फकीर को शेख साहब को कहे ना कि अल्लाह के नाम का कुछ दे दे बाबा, उसको आगे से कहते हैं माफ कर पाई हुकूमत मुक गई। को तकरीबन 1815 से कहते आ रहे हैं हुकूमत मुक गई है, जान वाली हुकूमत गई, ओ गई चली गई, जान वाली है भाजी अगले हफ्ते अगले महीने, तुक्का लगाते रहते हैं। जब चली जाएगी तो कहेंगे कि क्यों जनाब क्या सी ना हुकूमत चली जाएगी, और जब नहीं जाती तो फिर कहते हैं मैंने ये कब कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत चली जाएगी, मैंने कहा था हुकूमत चली गई, रवांडा में हुकूमत चली गई। अच्छा जी, नवाज शरीफ करप्ट तरीन शख्स है, मनी लॉन्ड्रिंग की, चोरी की, इनसे बेहतर तो जरदारी थे इमरान खान। बहुत अच्छे इमरान खान साहब, आपके जनाब उकाड़े वाले जलसे में यरदारी हुकूमत के वजीर अशरफ सोना ने डांस क्या किया, आपको यरदारी साहब अच्छे लगना शुरू हो गए। क्या बात है जनाब अली, ये हाथ हौला रखें खुदा के लिए, आप तो जनाब इस्लामाबाद बैठे होते हैं, ये 1122 का जो अपना 122 का जो इलाका है ये पहले ही मैदान जंग बना हुआ है। और आपके इस तरह के बयानात से जनाब इधर और लोग यही बात पकड़ रहे हैं। खुदा का वास्ता है इस तरह की गुफ्तगू करें कि खैर खैरियत से इलेक्शन हो जाए, बड़ी टेंशन है। ऊपर से देखे ना कितने सख्त लफ्ज़ बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ करप्ट तरीन है। निरा चलो करप्ट कह ले, गुस्सा ही निकालना है तो तरीन साहब तो आपके पास है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अगर तो ये बोतल के अंदर से कामयाबी से बाहर आ गई तो फिर 122 में पांजा भी आ जाएगा। ये देखें। ले जी 122 में यहाँ सादक जीत जाए। हम लोगों ने आज तक बोतल में जिन का सुना था, आज आपको बोतल में बिल्ली दिखाती हूँ।
बोतल में बिल्ली? बोतल में अच्छा बिल्ली। जी। हाँ ये दिखाओ जरा ये क्या चक्कर है बोतल में बिल्ली? ये रही बिल्ली। और ये रही बोतल। एग्जैक्टली। ये तो निकल आई हुई है पहले। हाँ जी अभी जाएगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये अच्छा देखें। बोतल के अंदर जा रही है। हाँ वाह जी। वाह वाह वाह। कोई अंदर कोई छोटा सा चूहा ना हो। ये फंस गई है। निकल नहीं सकती ना, फंस ओए गई होए है। होए। भांजा 122 में फंस गया, खाला बोतल में फंस गई। ये रहा देखो ना, अगर तो ये बोतल के अंदर से कामयाबी से बाहर आ गई तो फिर 122 में पांजा भी आ जाएगा। ये देखें। ले जी 122 में यहाँ तक जीत जाए। अच्छा जी, अब जो अगली वीडियो है ना वो स्पेशली आपके लिए आई है सर। ये देखें तोता। क्या भाई आपके लिए नहीं आई, इसी की है वीडियो ये। अच्छा बचपन की। और देखो बच्चे की हिफाजत कैसे कर रहे तो उससे बच्चे को हाथ लगाने लगता है तो वो आगे से मारता है उसको, खबरदार इसको ना हाथ लगाना मेरे कुकू को। बहुत अच्छा। तो पता है एक तोता है जिसको मॉक पैरट कहते हैं, उसको गार्ड पैरट भी कहा जाता है। वो कुत्ते की तरह घर की हिफाजत भी करता है। अच्छा वाओ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अल्फैशन तोता है। उन्होंने कहा तो है मॉक पैरट। अच्छा मॉक पैरट, मैं क्या शायद पौंक पैरट। वो भौंकता ही है तकरीबन। अच्छा शोर इतना चोर कहता है ना तो मौंक पवे दौड़ जाता होगा। अच्छा जी अगली वीडियो भी जानवर की है। आज मेरे पास वैसे सारी वीडियो का कलेक्शन जानवरों का ही है। अच्छा दिखाएं जरा ये कौन सा ये जानवर है? ये तो किसी सर्कस की लग रही है। हाँ जी सर्कस की है। वाह, वो तेरा पड़ा हो जाए। वाह रे वाह। पाँव रखा है उसने। सारे पाँव रख के खड़ा। उत्ते वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। यार इंसान देखो कैसा ताकतवर है, कितना हाथी स्टूल पे टांग दिया उन्होंने। ऐसा ही है। बल्ले 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 बल्ले। ब्यूटीफुल। देखो यार जुनैद, जिस तरह तुम एक पाँव पे खड़े होते हो घर, उस तरह देखो हाथी सर्कस में खड़ा हो गया। एक और जानवर की महारत देखिए, ये ले। ये क्या करने लगे हैं? कुत्ता सीढ़ियां उतर रहा है। वही तो हैरान को नजीर साहब। शाबाश, कैसा मजदूर तबीयत का कुत्ता। महारत है ना उसकी, वाह, एक्सपर्ट वाह, हो गया। वाह। ये तीजे चौथे चक्कर में एक पंजे में बाल्टी और दूजे में बुरश भी पकड़ लेगा। बहुत अच्छे। हाय हाय। कैसे इंसानों की तरह उतर रहा है ना वैसे। हाँ जी, अल्लाह पाक अकल देने वाला है, वो जानवर हो या इंसान हो। ये बेशक। किसी शेख साहब ने मजदूर की मजदूरी बचाने के लिए इसको ट्रेन किया होगा। सीधी बात तो। यार मगर हाथ में कुछ नहीं है ना, ना को रंगला डब्बा और कूची है, ना को छेनी अभी थोड़ा है, ट्रेनिंग है ना सिर्फ। ना को पेचकस प्लास है। यानी अभी सिर्फ पौड़ी से उतरना चढ़ना ही सिखाया है। बाद में कह देंगे वेला ही फिरी जाना को दंदा च प्लास ही फाड़ ले। सारे हैवानी कमाल ही दिखाते जा रहे हो कि इंसानी कमाल भी दिखा दो। वो तुम दिखा दो उठ के हल्का सा मैग्नम करके। मैग्नम नहीं गैंगनम। मैग्नम ही होता है। तुम्हें समझ आई है ना हाँ जी, हाँ जी। मैग्नम? तो क्या लोड है सीधा करने की, ठीक है। ये लें जी। मछली देखो। सीरियसली। ये वो टीन का कैन जो है ये खा रही है मच्छी। हाँ जी जी सब खा रही है बहुत वो। अच्छे। क्या मच्छी की खरा दिया तबीयत पाई गई है। मेरा ख्याल है इस मछली को पकड़ने के लिए कुंडी नहीं मकनातीस लगाना पड़ता हो। मगरमच्छ तो सुनते थे लोहा खाते हुए, मछली को पहली बार देखा। हाँ जी, ये गंदी मछलियां हैं तालाब में बहुत। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। देखो 35 लाख ज़लज़ला ज़दगान की बहाली का काम था। 35 लाख। ये अभी 2005 में अमेरिका में जो कतरीना आया था तो मुतासरीन की तादाद गालिबन मेरा ख्याल है 3.5 लाख के करीब थी। आज तक बहाली का काम हो रहा है। बिल्कुल आज ऐसा ही तक। है। जुनैद मोहतरम, आज 8 अक्टूबर वाले जलजले का मेरा ख्याल है 10वां साल था। 10वीं बरसी। हाँ जी हाँ जी।
تو اس میں کافی ڈسکس بھی ہو رہا ہے, کئی لوگوں نے یہ کیا بھی ہے ڈسکس, بڑی لیدے بھی ہو رہی ہے اور اکثر ہوتی رہتی ہے, پھر بھی بے حسی جو ہے وہی سامنے نظر آتی ہے. وہ جو زلزلے کے دنوں میں احکامات جاری کیے گئے تھے یا ارادے کیے گئے تھے یا جو وعدے کیے گئے تھے یا جو تسلیاں دی گئی تھی وہ کدھر گئی؟ ہوا نہیں تو اس میں فضا تھی نا. ذرا یاد کرو جب وہ زلزلہ آیا تھا تو پاکستان کی تاریخ میں شاید بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں کہ آپ کو پوری قوم, حکومت, تنظیمیں, جماعتیں سب ایک پیج پہ بالکل یکمشت نظر آتی تھی کہ ہم اس آفت کا, اس مصیبت کا مقابلہ بہت زبردست انداز میں کریں. جی دور دور تک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پاکستانی, ہمارے خاص طور پہ پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, سارے لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے زلزلے والے میدان میں کھڑے ہیں. اس طرح کی محبت سب نے کی تھی. ورنہ اکثر آفات ایسی آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار آفت وہاں پہ آئی ہے, لیکن پاکستان کے بڑے شہروں میں تم دیکھ لو کہ بے حسی کسی کیفیت نظر آتی ہے, ریسٹورنٹس میں, ہوٹل میں, پارکس میں اسی طرح رش نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب آج سے 10 سال پہلے زلزلہ آیا تھا, اس قدر یہ خوفناک آفت تھی کہ اس کے بعد واقعی پاکستان, پورے پاکستان میں ایک سوگ کی کیفیت حقیقت میں نظر آ رہی تھی. بالکل. اگر آپ کو یاد ہو وہ اپنی فیلنگز بہت بڑا تھا. اچھا تم دیکھو کہ اس وقت حکومت ایک اس وقت اور تھی, آج اور ہے. اس حکومت نے بھی پچھلی حکومت سے وہ ریلے ریس کی طرح سٹک پکڑی تھی اور آگے چلنے کا عزم کیا تھا. پچھلی حکومت کی سیریسنس بھی آپ کے سامنے ہے اور اس حکومت کی بھی. ایک تو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب سے اقتدار میں تشریف لائے ہیں, انہوں نے کتنے تمطراق کے ساتھ ایک بہت بڑی سکیم اناؤنس کی تھی. انہوں نے آدھے صفحے کے اشتہارات بھی دیے تھے اپنی نمایاں تصویر کے ساتھ کہ ہم یہ جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں یہاں پہ 8 ارب روپے کی لاگت سے 1000 سکول قائم کریں گے. ملالہ سے جب ملاقات کے لیے گئے اس وقت بھی بہت فخر کے ساتھ عالمی برادری کے سامنے یہ اعلان کیا تھا 1000 سکول. اس کے بعد نواز شریف صاحب جہاں بھی تشریف لے کے گئے ہیں اس منصوبے کا ذکر ضرور کیا انہوں نے. 1000 سکول 8 ارب روپے. تو ابھی زیادہ سے زیادہ میرے خیال ہے 2-3 سکول ہی بنا ہوگا. اور کتنے ارب روپے جاری کر دیے گئے ہوں گے تمہارے خیال میں؟ 8 ارب کی جگہ 1.5, 2, 2.5 زیادہ سے زیادہ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ 8 ارب میں سے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا. 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا اور کسی ایک سکول کی 1 اینٹ بھی, بنیاد بھی نہیں رکھی گئی. بنیاد بھی نہیں رکھی گئی. کتنے افسوس. افسوس تو چھوٹا لفظ ہے نا. جتنے سارے پروجیکٹس تھے جو بڑے ہی عزم و یقین کے ساتھ جن کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم زلزلہ زدگان کو بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ذرا ان علاقوں میں جاؤ اور زلزلہ زدگان سے پوچھ کے دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. کتنی بار وہ جو 1-2 سالوں کے بعد حکومت کے لوگ کتنی بار آئے ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, یہ وہ والا قافلہ ہے. پوچھ کے دیکھ لو ان سے. تم دیکھو وہ نیو بالا کوٹ سٹی, کتنے عزم اور کتنے بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ نیو بالا کوٹ سٹی فالٹ لائن پہ ہے. سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں جو رسکی ایریا ہے, خدا نخواستہ دوبارہ زلزلہ آنے کے حوالے سے, وہ بالا کوٹ ہے. تو متبادل بالا کوٹ, نیو بالا کوٹ بنایا گیا تھا. اور اب تم اندازہ کرو کہ نیو بالا کوٹ میں جو صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا گیا تھا ایرا کو, جو بڑی تنقید کی زد میں ہے کہ ایرا والے کام نہیں کر رہے. ایرا بھئی ایرا کو پیسے ہی نہیں دیے آپ نے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی ٹھیکیدار سے کہو کہ بھائی جان آپ میرا مکان بنا دیں, تو وہ کہہ رہی زمین ہے, کہتے ہیں زمین بھی نہیں ہے, زمین پہ قبضہ ہوا ہے, وہ قبضہ بھی خود چھڑوانا ہے تم نے, اور مکان بنانے کے لیے پیسے وہ بھی خود ہی جنریٹ کریں. یعنی ایک وقت تھا کہ شروع میں ہمارا جو عزم و یقین تھا یہ زلزلہ زدگان کی حمایت کے حوالے سے 10 ارب روپے جاری کیے جاتے تھے. اب وہ کم ہوتے ہوتے 2 ارب بھی نہیں رہ گئے. اور تعمیراتی کام اور جو بحالی کا کام ہے وہ کتنے فیصد ابھی پڑا ہوا ہے. لوگ اسی طرح مطلب بیار و مددگار پڑے اور کوئی ان کے زخموں پہ مرہم نہیں لگ رہا. تو وہ جو نیو بالا کوٹ بتا رہے ہو بننا تھا, اس کا کیا بنے؟ 14% اس کی زمین دی گئی تھی ایرا کو, انہوں نے تو اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اب وہاں اچھا اس کی بھی تم دیکھو کہ زمین پر قبضہ ہی اتنا بڑا مسئلہ
उसमें भी सियासत आ जाती है। नाकाबिले यकीन जगहों पे सियासत इन्वॉल्व है हमारे यहाँ, नाकाबिले यकीन। अब तुम देखोगे उसकी बड़ी वजह पता क्या है? क्या? ये जो नून लीग के वजीर हैं सरदार यूसुफ साहब, ये जब जलजिला आया था तो ये मानसरा के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हुआ करते थे। अब अगर ये न्यू बालाकोट में चले जाते हैं, आबादी वहां शिफ्ट हो जाती है उसी तरह जैसे प्लान की गई थी, तो इनके कमोबेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 30,000 वोट मुंतकिल हो जाते हैं। यानी 30,000 वोट अहम है, 30,000 इंसान अहम नहीं है इन लोगों के लिए। ये बालाकोट का काम खराब करने वाले वही सरदार यूसुफ साहब है ना, वजीर साहब, जो आजकल गए हुए हैं अपनी तरफ से हाजियों की मदद करने के लिए, और उधर एक 5 स्टार होटल मक्का टावर में ठहरे हुए हैं, बेहतरीन स्वीट कमरा लेके। जमीन पर कब्जे नहीं हो रहे, जमीन हुकूमत को दी नहीं जा रही, और वहां पर एक जाली किस्म की तंजीमें बना के मुजाहरे करवा दिए जाते हैं, और जो बंदा इन मुजाहरों को लीड कर रहे हैं, इन सब मुजाहरों को जमीन पर कब्जे के हवाले से, उसकी अपनी जमीन कितनी है? 7 मरले। उसने पूरे पाकिस्तान के लिए वो दर्द सर बना हुआ है, एरा के लिए दर्द सर बना हुआ है, और फिर हमने सॉफ्ट टारगेट तलाश किए हुए हैं। हम कह देते हैं जी एरा वालों ने काम नहीं किया। यार एरा वाले खाक काम करेंगे? देखो 35 लाख जलजला जदगान की बहाली का काम था, 35 लाख। ये अभी 2005 में अमेरिका में जो कतरीना आया था तो मुतासरीन की तादाद गालिबन मेरा ख्याल है 3.5 लाख के करीब थी। आज तक बहाली का काम हो रहा है, आज तक। फिर हिंदुस्तान में जलजला आया था 2005 में, वहां पर भी मुतासरीन की तादाद 4.5 लाख थी, और वो उन्होंने जो उनके रिहायशी यूनिट्स थे वो मेरा ख्याल है 30% भी मुकम्मल नहीं कर सके। एरा वालों ने तो फिर भी अपने जो उनके काम जो सुपुर्द किया गया था वो तो उन्होंने कमा को पूरा कर दिया। अल्लाह माफ करे, किसी बुजुर्ग ने कहा हुआ ना जी कि जब आप किसी अपने प्यारे को दफना देते हैं तो सारी मोहब्बतें भी साथ ही दफन हो जाती हैं। देखो ना जरा कि किस तरह हम लोग दावे करते हैं जब इस तरह का कोई नुकसान होता है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, उन दिनों में मैं भी उधर गया था, मैंने चक्कर लगाया था, और ईमान से मैं हैरान हो गया था देख के कैसे दूर तक मकानों के मकान, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें जो उधर बड़ी हुई थी, मुजफ्फराबाद साइड की तरफ सारी जमीन बोस हुई थी, और उस वक्त लगता था कि यार ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वाकई हुक्मरान जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर इनके। ये जो न्यू बालाकोट है इस तरह बेयारो मददगार छोड़ा गया है, जितना बन गया है उस पर भी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। फिर ये इस तरह की अफवाहें जन्म लेती हैं कि हुकूमत दीदा और दानिस्ता इसको नजरअंदाज कर रही है ताकि इसको किसी बड़े इदारे की तरह, स्टील मिल की तरह, PIA की तरह बिल्कुल कंगाल करके किसी प्रॉपर्टी टाइकून को बेच दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वैसे यार जुनैद, चलो हुकूमतों की बेइज्जती तो सामने आती रहती है, समझ आती है हुकूमत तो चलो कोई भी हो। इस तरह के मामलात में जो आपका मीडिया है उसका भी फर्ज बनता है कि जज्बात जो है वो उजागर रखे, लोगों को याद करवाते रहे, हुक्मरानों को याद करवाते रहे। आप देखो ना सारा साल मुझे तो इस हवाले से कभी कोई डिस्कशन या खबर नजर नहीं आई। जब 8 अक्टूबर आई है तो मीडिया भी खबरें दे रहा है और उसकी वो बरसी मना रहा है। मेरा ख्याल है सारा साल अगर रौला डालते रहे, साथ साथ हुक्मरानों को याद कराते रहे कि हजूर आपने ये वादा किया था, आप लोगों ने इनके लिए इस तरह इतने पैसे मुख्तस किए थे, तो वो किधर गए पैसे? अच्छा, पैसे भी मुख्तस नहीं किए। ये जो मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ, वजीर आजम साहब जिन 8 अरब का बार बार हमें कौम को लॉलीपॉप दे रहे थे, ये हुकूमत ने अपनी जेब से भी नहीं देने थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी जेब से देने ही नहीं थे, हुकूमत ने सरकारी खजाने से भी नहीं देने थे। ये इंटरनेशनल डोनर्स ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दिए हुए हैं, उनमें से यानी खुद तो वो कहां पड़े, वो इधर उधर लगा दिए, खा पी गए सारे। हाँ सर, अगर हमारा यही रवैया रहा तो इंटरनेशनल डोनर्स के सामने तो हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, और कभी डोनेट नहीं करेंगे दोबारा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गलत फहमियों की आग सुलगाने वालों, शाह महमूद को पीछे हटाने वालों, मई जून में गीजर के पानी से नहाने वालों, नाज़रीन, 122 का ज़िमनी इलेक्शन और अपनी पार्टी से शाह महमूद कुरैशी साहब की नाराजगी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद बनफ्से नफीस तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी, और उनके साथ है उनका एक चाहने वाला। एक चाहने वाला नहीं, हर एक चाहने वाला, हर एक चाहने वाला, हर एक चाहने वाला। और ये हर HER हर भी हो सकता है। अच्छा, हर से याद आया,
हेनरी आजकल कहाँ होती है? मुझे क्या पता शाह जी। भाई आपकी हल्की हल्की तो शक्ल अंग्रेजों से मिलती है। हमने तो इसलिए रिस्क लिया पूछने का। बहरहाल हम ये आज आपके प्रोग्राम में ये पूछना चाहते हैं आपसे भी और अपने हर एक चाहने वाले से भी कि कल शाह महमूद कुरैशी के खिताब का कितना मजा आया। बड़ा मजा आया जी, यकीन करना इतना मजा मुल्तान की चांपों में नहीं था जितना कल कुरैशी साहब की तकरीर में था। जायकेदार, मजेदार, हाजमेदार तकरीर। आप तो ये कल से बारहा दफा हमें बता चुके हैं और यही अल्फाज कह चुके हैं। हमें जरा आप इनसे भी पूछने दीजिए। नहीं, आपने खुद ही कहा था ये बात आप टेलीविजन पे भी कह दो। हाँ तो कह दी, बस खत्म। कैसा लगा आपको हमारा जज्बात से भरपूर खिताब? शाह साहब ये पूछने वाली बात है, हमेशा की तरह आप छाए हुए थे। जुनैद साहब हम तो इस कदर जोशीले हुए थे कि हम चाह रहे थे कि जो दरमियान में म्यूजिक ब्रेक आती है वो भी हम खुद ही फिल करें। हाँ, एक अच्छा तजर्बा होता है शाह जी। इस हवाले से हमारे जहन में एक गाना भी टमटमाया। क्या था शाह जी? माय नेम इज जोशीला, जोशीला की जवानी। शाह महमूद की कुर्सी किसी के हाथ नहीं आई। कल हमने अपनी ही कुर्सी संभाल के स्टेज के ऊपर इमरान खान के पहलू में बैठ के ये साबित किया कि हम इक्तदार के लिए नहीं तब्दीली के लिए इमरान के साथ थे। हमने कह दिया कि हमारी कुर्सी पर गंदी नजर डालने वालों, अरे अफवाहें फैलाने वालों, गलत फहमियों की आग सुलगाने वालों, शाह महमूद को पीछे हटाने वालों, मई जून में गीजर के पानी से नहाने वालों, हाथ पाव गोश्त का 2 किलो शोरबा बनाने वालों, अपनी गंदी बुनियान से अपने बूट चमकाने वालों और अपने इंतहाई छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें मनाने वालों, गौर से देख लो, गौर से देख लो, गौर से देख लो। ये हुस्नो सियासत का पैकर, ये हुस्नो सियासत का मुजस्मा शाह महमूद इमरान की टीम का सिपा सालार है। वाह वाह। ये इमरान की टीम का सिपा सालार है, स्टेज पर खड़ा है, इमरान के शाना बशाना खड़ा है। क्या कहें? बस फिर हमारे मुखालिफिन के, नाकदीन के, नाजरीन के, मुनाफिकीन के, शाइकीन के, आफरीन के, नुक्ताचीन के, हासदीन के, हाजरीन के, सामईन के दांत खट्टे हो गए। दांत खट्टे हो गए जुनैद सलीम, दांत खट्टे हो गए बगैर इमली की मूंछें चूसे। ना उधर कोई गोलगप्पे वाला, ना उधर कोई शकरकंदी वाला, ना उधर कोई उबली हुई छल्ली वाला। फिर मुखालफिन के दांत खट्टे हो गए। वो जी आपके खिताब में टाटरी जो थी। अबे ओ नाहंजार, ये टाटरी का नहीं, ये मेरे जोशे खताबत का कमाल था, मेरे लफ्जों का जलाल था, मेरे लहजे का जमाल था, मुखालफिन का जवाल था, मेरे पिछले ड्राइवर का नाम हाजी बलाल था और इमरान मेरे नाल था। याद रखो, सियासत में शाह महमूद का कोई सानी नहीं। शाह महमूद वो मिसाल है जो शीन से शुरू होके दाल पे खत्म हो जाती है। शीन दाल शद, शद्दो मद, शीन दाल शाह महमूद नहीं, ये तो शाहिद भी है। शीन दाल मिसाल बदलनी पड़ेगी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। कभी कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई हमने गौर से देखा इतना सा होता है रुपया, अब इससे छोटा बाप किसका है? शाह साहब बात तो आपसे सिर्फ इतनी सी पूछनी थी कि आप पीटीआई की क़यादत से कुछ नाराज हैं? नाराज नहीं हैं हम,
पीटीआई की क़यादत से हरगिज नाराज नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़े से रुस्से हुए थे उससे हुए या गुस्से हुए थे गुस्से या फिर बुस्से हुए। मेरा मतलब है कि वो बचपन में कहा करते थे ना कि क्यों रुस्से हुए हो, बुस्से हुए हो, उस तरह का प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा सा सिलसिला चल रहा था। अच्छा, वजह क्या रुसने वाला। वजह क्या थी? दरअसल जुनैद साहब जो ठान के, जो मान के, जो जान के, जो इमरान के, जो मुल्तान के, जो आन के, नहीं आन के तो नहीं आता, जो तान के, अल्लाह आपका भला करे, जो तान के पीटीआई बनाई थी शाह महमूद कुरैशी ने जी? उसको आपने बनाई थी? चले यूं कह ले कि जब पीटीआई बन रही थी तो हम आ गए थे और फिर हमने आके इसकी तश्कील की, इसकी शक्ल संवारी, इसका नक्शा दुरुस्त किया। हमने आके कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? बीच में से किसी ने बताया कि पीटीआई बना रहे हैं। हमने कहा कि फिर ठीक कर ले, इसे इधर कर ले, इसे इधर कर ले, इसे इधर कर ले। इसे इधर किसने किया है? अभी आपने किया है। नहीं नहीं, इसे उधर ही कर ले। ये पीटीआई का स्किल दे रहे हैं, ये शतरंज खेल रहे हैं। अबे ओ जाहिल, सियासत भी एक शतरंज की बाजी ही होती है जिसके मुतल्लिक शायर ने कहा है। ये हमें नहीं मालूम कि किसने कहा है, मगर था वो शायर जो कह गया, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। शायर नहीं, शायरा थी वो। शायरा होंगी लाजमन, जो तेरी है वरना तेरा होता। ये तेरा और तेरी से ही तो शायर की जिन्स का पता चलता है और तादाद का भी। तेरा 13 को भी कहा और तेरी जो है, तेरी से याद आया, हेलरी आजकल कहाँ है? वो आजकल ओ लेवल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। सवाल मेरा इतना सा है शाह जी आपसे कि नाराजगी की वजह क्या है? ओ लेवल के बच्चों को क्यों पढ़ा रही है, ए लेवल को क्यों नहीं पढ़ा रही? पीटीआई से नाराजगी की वजह क्या है? पीटीआई से हमारी कोई नाराजगी न थी, न है, न होगी। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, हवाई उड़ाने वाले ने अपनी ही इज्जत गवाई होगी। हमारा तो अब सब कुछ पीटीआई होगी। अब कुश्ती बीच 122 होगी। हमारी फतह के बाद अवाम की रिहाई होगी। अगली हुकूमत हमारी कौमी और इनकी सुबाई होगी। इस वजह से नहीं हम पे खुशी छाई होगी, वो तो हेलरी ने कभी चाय पिलाई होगी, चाय के साथ खीर भी पकाई होगी। चाय के साथ खीर, फिर तो वो अताई होगी। ऐसे मत कहो, शायद वो तुम्हारी परजाई होगी। शाह जी, ब्रेकिंग न्यूज। अब तो वो 80 साल की माई होगी और बैठी साथ अपने जवाई होगी और हाथ में उसके दिल वाली दवाई होगी। अच्छा शाह जी, आप लोग तब्दीली की बात करते हैं, हल्का 122 में जो आपका उम्मीदवार है वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है। बिल्कुल गलत इल्जाम, बोहतान। अरे भाई, आप पैसे फेंक के देख लें, कभी बहते हैं पैसे? शाह जी, उसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपया लगा रहा है। भाई, आप करोड़ों की बात करते हैं, लाखों फेंके तो वहीं गिर जाते हैं। हमने तो कभी पैसे बहते हुए नहीं देखे। हाँ, सुनते अलबत्ता शुरू से ही आए हैं, और वो भी हासदीन से। और इन्हीं हासदीन ने हमारे साथ साथ पैसे को भी बदनाम किया है। कभी कह देते हैं कि पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। भाई, हमने कभी नहीं देखा पैसा बहते हुए। कभी कह देते हैं कि पैसा हाथ की मैल होता है। हमने कई दफा ऐसे ऐसे करके फेंका है, पैसा नहीं गिरा, मैल की मरोड़ी गिरी। कभी कह देते हैं कि पैसा बोलता है। भाई, हमने तो कभी पैसा बोलता हुआ नहीं देखा। हमने तो कई दफा ठीपे को मेज पे रख के ऊपर डंडे भी मारे हैं, उसने आगे से उफ तक नहीं कहा।
اور کبھی کہتے ہیں کہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. بھائی ہم نے غور سے دیکھا اتنا سا ہوتا ہے روپیہ. اب اس سے چھوٹا باپ کس کا ہے؟ یا بھیا بھی لگا لے تو کس کا ہے؟ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.